اور حج کے دوران سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کے لیے مکہ مکرمہ پولیس نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر قائم کر دیا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے ذریعے مشاعر مقدسہ کی نگرانی کے علاوہ داخلی اور خارجی راستوں پر بھی کڑی نظر رکھی جائے گی۔ مناسک حج کی ادائیگی کے دوران سیکیورٹی کو فول پروف بنانے کے لیے مکہ مکرمہ پولیس کی جانب سے کمانڈ اینڈ کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جو مکہ مکرمہ کے داخلی اور خارجی راستوں کے علاوہ منا، مزدلفہ اور میدان عرفات کی سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے نگرانی کو یقینی بنائیں گے، جبکہ مشاعر مقدسہ کی فضائی نگرانی بھی کی جائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے علاوہ سینکڑوں سیکیورٹی اہلکار بھی ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ نیو یارک قونصلیٹ کی جانب سے پاکستان اور امریکہ کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو اجاگر کرنے کے موضوع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ وفاقی سیکرٹری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شعیب احمد صدیقی، سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان، چیئرمین آئی ٹی بورڈ شجاعت علی، ٹیکنالوجسٹ کے بانی اور نیٹ سول کے سی ای او نے شرکت کی۔ خرم شہزاد کی رپورٹ۔ پاکستان اور امریکہ کے مابین انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں تعاون کو اجاگر کرنے کے موضوع پر نیو یارک میں پاکستانی قونصلیٹ نے ایک ویبینار کا اہتمام کیا۔ اس ویبینار کا مقصد پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کے میدان میں ممکنہ استعداد کو امریکہ میں متعارف کروانا ہے۔ سفیر پاکستان ڈاکٹر اسد مجید خان نے کہا کہ پاکستان میں انفارمیشن ٹیکنالوجی بہترین نتائج کا حامل شعبہ ہے۔ ٹیکنالوجی is a low hanging fruit in our bilateral relationship and it is also a force multiplier. And I think this conversation becomes even more important in the present context because one, US in any case is our largest export destination for the whole range of products, but in the context of IT, also US is our largest export destination. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ حکومتی پالیسیوں کے باعث آئی ٹی کے شعبے نے گزشتہ 2 سال میں غیر معمولی ترقی کی۔ کووڈ-19 کے پیش نظر انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے میں پاکستان امریکہ تعاون کے لیے نئی ترجیحات کے مواقع میسر ہیں۔ سفیر پاکستان نے امریکی آئی ٹی کمپنیوں کو پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے میں بھرپور شمولیت کی دعوت بھی دی۔ I am one of those who believe that technology is a low hanging fruit in our bilateral relationship and it is also a force multiplier. And I think this conversation becomes even more important in the present context because one, US in any case is our largest export destination for the whole range of products, but in the context of IT, also US is our largest export destination. وفاقی سیکرٹری برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شعیب احمد صدیقی نے پاکستان میں آئی ٹی کے شعبے کے فروغ کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے شرکاء کو آگاہ کیا، جبکہ عائشہ علی کا کہنا تھا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں پاکستان امریکہ تعاون شاندار مستقبل کی نوید ہے۔ اس موقع پر ویبینار میں شریک امریکن انفارمیشن ٹیکنالوجی کے نجی شعبے کے رہنماؤں کا پاکستانی کمپنیوں کے ساتھ کام کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ادھر ہانگ کانگ میں حکومت نے کورونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر رکھنے والے احتیاطی تدابیر میں سختی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ہانگ کانگ حکومت کی انتظامیہ کے چیف سیکرٹری نے کہا کہ نئی احتیاطی تدابیر میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ کسی بھی ریسٹورانٹ میں کوئی بھی بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکے گا، ہر عوامی مقام پر ماسک پہننا لازم ہوگا، پبلک گیدرنگز کی حد کو بھی 4 لوگوں سے کم کر کے 2 لوگوں تک کر دیا گیا ہے اور تمام کھیلوں کے میدان اور سوئمنگ پولز بھی بند رہیں گے۔ حکومت کے ترجمان نے عوام سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ سب گھر بیٹھ کر دفاتر کا کام کریں اور بغیر کسی وجہ کے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ پاکستان تحریک انصاف اٹلی نے عمران خان کی حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے عمران خان پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا اور پاکستان میں کرپشن کے خاتمے کی مہم شروع کرنے، ملک کو درست سمت میں لے جانے سمیت کورونا جیسی وبا کا کامیابی سے مقابلہ کرنے پر حکومت پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تنویر ارشاد کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल मुकम्मल होने और PTI बेरगामो की ज़िले तंजीम साजी के लिए PTI इटली की जानिब से शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब की सदारत सदर तहरीक इंसाफ इटली और कोऑर्डिनेटर बराए वज़ारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी चौधरी आसफ अली बाजवा और चेयरमैन PTI इटली चौधरी बशीर बसाल ने की। तकरीब के ऑर्गेनाइजर सदर PTI बेरगामो कैसर तारड़, शमरेज गोंदल, फरहत गोंदल, दिलावर विर्क ने तकरीब के मेहमानों का इस्तकबाल किया। तकरीब में सदर PTI इटली चौधरी आसिफ अली बाजवा ने बेरगामो जिला को तंजीम साजी के नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा कि इमरान खान की हुकूमत को करप्शन, माशी हालात की खराबी, तवानाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल साबिक हुक्मरानों की जानिब से विरसे में मिले थे। तहम 2 साल के मुख्तर अरसे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इन मसाइल पर न सिर्फ काबू पाया बल्कि मुल्क को दुरुस्त सिमत पर चलाना शुरू कर दिया है। इंशाल्लाह 2 साल में आपको पता बहुत ज़्यादा ये कोरोना का मसला बन गया, दूसरा तीसरा जो भी है। इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो अपने लाइन में अभी चल गई है, तो इंशाल्लाह आने वाले 3 साल में बहुत अच्छे काम होंगे। इंशाल्लाह आपको नज़र आएंगे सारे काम। और रह गई इटली की बात, इटली में अभी हमें 8 महीने हो गया इलेक्ट्रिक बॉडी को, तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि ये मिलान में भी हो गया, ब्रेशिया में भी हो गया और आज बेरगामो भी हो गया। बेरगामो में इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ है, तो मैं कैसर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छे लोग हैं ये। इंशाल्लाह हम पूरे इटली में ऐसे प्रोग्राम करेंगे और पार्टी को लेके आगे चलेंगे। देखें जी, आपको भी पता है कि पाकिस्तान का जो अभी जा रहा है लेवल जो जा रहा है, वो आपको पता है किधर जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। इंशाल्लाह अच्छे हालात होंगे और नेक्स्ट आने वाले 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है। ये आपको पता है कि पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं थी पाकिस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी में। अभी फवाद चौधरी साहब भी कोशिश कर रहे हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा रहे हैं। आसिफ बाजवा ने मजीद कहा कि बेरगामो में मुनक्किदा तकरीब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान के विजन और अज़म के साथ हैं और हर कदम पर साथ खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसला को आलमी सतह पर उजागर करके मौजूदा हुकूमत ने कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक में एक नई रूह फूंक दी है और इमरान खान ही मसला कश्मीर हल करवाएंगे। देखिए जी, हमने तो आया अभी 8 महीने हो गया, तो उसमें 3-4 महीने तो निकल गया कोरोना की वजह से। तो अभी इंशाल्लाह ये इलेक्ट्रिक बॉडी जो काम कर रही है आपको नज़र आ रही है, और इंशाल्लाह जो पाकिस्तान में मसाइल हैं लोगों के इटालियन एम्बेसी के, वो भी इंशाल्लाह हल करेंगे और हल करने की कोशिश करेंगे। दूसरी रह गई हमारी अपनी एम्बेसी, वो किसी को प्रॉब्लम है तो आके हमें बताए, इंशाल्लाह उसका हल करेंगे। और रह गई तरीके वो जो कश्मीर की बात कर रहे हैं, भाईजान कर रहे हैं दूसरे कश्मीर के हवाले से, वो इंशाल्लाह इमरान खान की क़यादत में वो कश्मीर आज़ाद होगा इंशाल्लाह। इस मौके पर ज़िली सदर PTI बेरगामो कैसर तारड़ ने कहा कि इमरान खान एक सोच और विजन का नाम है जिसने 22 साल की अनथक मेहनत और साथियों की कुर्बानियों के नतीजे में हुकूमत हासिल की है। 2 साल में इमरान खान ने जिस तरह मुल्क को एक नई सिमत दी है, इसकी पाकिस्तानी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के सीनियर चेयरमैन और रहनुमा PTI चौधरी शमरेज गोंदल ने कहा कि बेरगामो ने साबित कर दिया है कि वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान का आप सबको पता है, उन्होंने काफी स्ट्रगल की है। माशाल्लाह उनकी स्ट्रगल 1996 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन्होंने बुनियाद रखी। उन्होंने बहुत मेहनत की, 22 साल की अनथक मेहनत और कोशिश के बाद 2018 में PTI को हुकूमत मिली। ये उनकी मुसलसल मेहनत, कोशिश और साथियों की कुर्बानियों का नतीजा है। तो उनके विजन के मुताबिक हम कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह प्रोविंशिया दी बेरगामो में PTI को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें। और जो हमारा मेन हम ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, हमारे जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें। उसके लिए मैं बाजवा साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोशिश करूंगा जुल्फी बुखारी साहब से भी बात करूं, सफारत खाने के जो मामलात हैं उनको अच्छे तरीके से डील करें। आज इंशाल्लाह मैंने बड़ी खुशी हुई है, मैं बड़ा खुश हाँ जिस तरीके नाल एल बेरगामो इत्थे आए ने ते उन्हां साडी इज्जत बनाई है साडे मेहमानां दे सामने। बहुत शुक्रिया सारिਆਂ ਦਾ, बड़ी मेहरबानी। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, बेरगामो नहीं पूरी इटली च पूरे यूरोप च जिथे भी सानू बुलाओ, ਅਸੀਂ इंशाल्लाह ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ हाजिर हाँ ते ਇਹ ਸਾਡਾ हक बनदा है। इंशाल्लाह ताला देखो बादशाह डैम ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਪਹਿਲੀਆਂ हुकूमतां ने कुछ नहीं किया। बिजली ਦੀ बुरहान इस वजह तो ਜਿਹੜੇ डैम बनाने चाहिए सन वो नहीं बने। खान साहब ऐलान कर दिता है बादशाह डैम का, तो हो गया इफ्तिताह। बाकी ਜਿਹੜਾ इंशाल्लाह उन्हें वादा किया है, मैं 3-4 डैम मैं अपनी हुकूमत दे विच बनावांगा और 20,000 मकान ਜਿਹੜਾ उन्हें शुरू कर दिता है
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਤੇ इंशाअल्लाह ताला वो पूरे उतरेंगे। कोरोना वायरस ने सियासी और समाजी सरगर्मियों को भी मुअत्तल कर रखा है, ताहम जल्द ही बेरगामो में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें इटली समेत यूरोप भर से पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट समेत दीगर खेलों के खिलाड़ियों को मदऊ किया जाएगा। चेयरमैन PTI चौधरी बशीर बिसाल ने कहा कि इमरान खान ने भाषा डैम समेत तवानाई के दीगर मंसूबे शुरू करके जाती फायदे के लिए मंसूबे बनाने वालों की सियासत को खत्म कर दिया है। तकरीब से PTI के जनरल सेक्रेटरी निसार वड़ैच, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी मिर्जा मोहम्मद खालिद, आतिफ बसरा खान, रिजवान खान और दीगर ने भी खिताब किया। उधर कनाडा के इलाके स्टीव लेक में छोटा तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे के वक्त तैयारे में 2 अफराद सवार थे, जिनमें से एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हालत में अभी ज़ेरे इलाज है। ज्वाइंट रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक उनको हादसे की इत्तला 5:30 पर मौसूल हुई। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीम हादसे के मकाम पर पहुंची और हादसे में ज़ख्मी होने वाले शख्स को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। तहकीकाती इदारों की जानिब से तफ्तीश शुरू कर दी गई है, लेकिन ताहाल तैयारा तबाह होने की वजह मालूम नहीं हो सकी।